Hello viewers, welcome to ICSC Core Class 10 Chemistry episode 2.1, and in this episode we are going to talk about chapter number 2. Chapter number 2, chemical bonding, that is ionic and covalent bonds. So according to ICSC Council or board, these are the points that we are going to cover in our syllabus, and that is electrovalent bonding, covalent bonding and coordinate bonding. So three bonds that we are going to study is electrovalent bond, that is ionic bond, covalent bond and coordinate bonding, along with the subtopics and examples. So let us move on to the introductory part. Now we have already studied about the periodic table, atomic size, electronegativity, ionization potential, electron affinity, nuclear charge, atomic radius, volume, periods and groups. And we have studied one thing, that group 1 group 1, 2 and 3 are mostly giving electrons. When they are giving electrons, they are attaining either duplet or octet structure nearest to inert gases, or you can say noble gases. So group 1, group 2, group 3, they are giving electrons in order to become duplet or octet. Now you must know what is the meaning of duplet. When the valence shell possesses completely filled electrons, then they are considered as a duplet one. Let us say this one K shell, L shell, M shell, N shell. Then K shell requires how many electrons? 2. As for example, helium. Lithium is having 3 electrons, so it can give 1 electron, so it becomes a duplet, which is very much nearest to helium. So group 1, group 2, group 3, they are giving electrons in order to become the octet state or duplet state. So period 2 is going to become a duplet. 1, group 1, group 2, group 3. Let me give an example and then it will be very easy for you to understand. क्योंकि एग्जाम्पल देने से ज़्यादा पता चलता है, जैसे कि लिथियम के बारे में, बेरिलियम के बारे में, बोरॉन के बारे में. यहाँ पे फिर कार्बन आता है, तो कार्बन से हम चेंज कर देंगे. मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बोला, तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, बराबर. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आता है 5 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 2,1, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 2,2, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा 2,3. अभी ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या रहेगा उसके, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल नहीं रहा, तो क्या रहेगा, जो भी शेल रहेगा वो उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला हो गया. यहाँ से उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ पे 2. समझ में आया? तो ये कौन सा रूल फॉलो करने लगा? ये डुप्लेट रूल फॉलो करने लगा. तो ग्रुप 1 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है. इट गिव्स 1 electron, it has a capacity to give 1 electron. Group 2 has a capacity to give 2 electrons. Group 3 has a capacity to give 3 electrons. समझ में आया? तो ये डुप्लेट बना देता है या तो फिर ऑक्टेट बना देगा. जैसे कि सोडियम, अगर आप सोडियम में देखो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11, 2,8,1. तो अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 1 के अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 10. और वो कैसे अरेंजमेंट में रहेंगे? 2,8. तो 2,8 किसके नज़दीक आ गया? नियॉन के नज़दीक आ गया, तो 2,8 हो गया. 8
अगर 8 हो जाता है तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल फॉलो करता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट what we have studied in chapter number 1, where they are giving electrons. Group 1, group 2, group 3 are giving electrons, while group 4 either it can give electrons or take electrons, so but it is accepting electrons rather than giving it. Then group 5, 6 and 7, they are going to accept electrons, they are going to gain electrons. When they gain electrons, as for example group 5 is going to gain electrons 3, group 6 is going to gain electrons 2, और ग्रुप जो 7 है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी कि वो यहाँ से ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है. 4 नंबर का ग्रुप है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या तो दे सकता है. देने में नहीं मानता, वो लेने में मानता है. दैट मीन्स इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्रॉम ग्रुप 4, 5, 6 and 7 they are going to accept electrons, and they are going to become the octet rule. They are going to follow the octet rule. समझ में आया? और ऑक्टेट रूल किसके नज़दीक में देखना है हमें? इनर्ट गैसेस के नज़दीक में, नोबल गैसेस के नज़दीक में. अगर डुप्लेट होता है तो हम हीलियम के बारे में देखते हैं. तो ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था कि वो इलेक्ट्रॉन्स देता है. बराबर. मैं इंट्रोडक्शन में इतना ही कहना चाहूँगा. सो मेनी थिंग्स आर देयर, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. सभी एलिमेंट्स के लिए हम नहीं देखने वाले. हमारे सिलेबस में 1 से लेके 20 एलिमेंट्स का ही देखना है हमें. बराबर. और 20 एलिमेंट्स का डिटेल स्टडी नहीं करना है, इससे सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपको ये जो मैंने बताया वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है. बराबर. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो ग्रुप 1 1 से बढ़ जाएगा, ग्रुप 2 2 से बढ़ जाएगा और ग्रुप 3 3 से बढ़ जाएगा. ग्रुप 4 के अंदर या तो वो +4 अगर लेता है तो, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो माइनस में जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स लिया तो माइनस में जाएगा. बराबर. फिर से अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ग्रुप 4 के अंदर, ग्रुप 4 ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो वो किस में जाएगा? माइनस में. अगर इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो किस में जाएगा? प्लस में. समझ में आया? और ग्रुप 5 उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए उसके जो सेल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर बढ़ोतरी होगी, यानी कि 5 है तो 3 बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी कि 3 माइनस में जाएगा. 6 के अंदर 2 बढ़ जाएंगे तो 2 माइनस में जाएगा. 7 के अंदर 1 बढ़ जाएगा तो 1 माइनस में जाएगा. तो ये आप उसकी वैलेंसी भी कह सकते हो, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ गए. ग्रुप नंबर 7 वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ग्रुप नंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ग्रुप नंबर 5 इलेक्ट्रॉन्स लेता है. बराबर. तो इतना आपको याद रखना है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है. बराबर. लेट अस मूव ऑन टू द our topic, that is ionic bond, or you can say electrovalent bond. ओके. सो जाने से पहले, हमारे टॉपिक के ऊपर जाने से पहले, यानी कि हम आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. बराबर. जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो एटम हो गया, लेकिन वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करता. बराबर. इट डज नॉट फॉलो आइदर डुप्लेट रूल या तो फिर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता. डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है. सो इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स देने की और लेने की बात आई, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करके डुप्लेट या ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके डुप्लेट और
ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। समझ में आया? तो एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डुप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो करना। तो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है, और वो क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स लिया दिया तो वो आयंस बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स देता है लेता है तो वो आयंस बन जाएगा। अगर दे दिया तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, अगर ले लिया तो नेगेटिव आयन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट रिक्वायर्स टू बिकम स्टेबल। उसको क्या बनना है? स्टेबल बनना है। और स्टेबल कौन सा पार्ट स्टेबल है? डुप्लेट और ऑक्टेट वाला जो पार्ट है वो स्टेबल है, यानी कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। स्टेबल होने के लिए डुप्लेट और ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ता है, विच इज इक्विवेलेंट टू द इनर्ट गैसेस या तो फिर नोबल गैसेस। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, किसी और को दे रहा है। दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स कब मिलेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तब मिलेगा। ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, इधर उधर घूमते रहते हो। ओके भाई तू भटक गया है, इधर उधर घूम रहा है, ला मैं तेरे को ले लूँ। नहीं, अगर कोई छोड़ेगा, अगर कोई लेगा, अगर कोई देगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो दूसरे एलिमेंट को या एटम को वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और डुप्लेट और ऑक्टेट रूल शेयरिंग करने के साथ भी मिल सकता है। सो इफ एलिमेंट्स और इफ एन एटम इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, then it can still follow duplet and octet rule. It can still become a stable. Understood or not? So there are two things. Either it will be giving an electron, that is transfer, or taking an electron, that is transfer, और number 2 शेयर करके। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग आ गया। सो यहाँ पे ट्रांसफर एंड हियर what it is sharing. Understood? So that's what it is. So यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें चलती है और वो बॉन्ड बनाता है दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र के साथ में बॉन्ड बनाया या तो शेयरिंग के साथ में बॉन्ड बनाया, तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। सो डेफिनेशन इज गिवन हियर। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स आयंस टुगेदर एंड स्टेबलाइजेस देम। देखा, स्टेबल करना है बाय ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स देना है, इलेक्ट्रॉन्स लेना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और वहाँ पे इलेक्ट्रो एफिनिटी का मतलब क्या? एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू द एफिनिटी ऑफ दिस एटम। तो हो गया आयंस टुगेदर स्टेबलाइजेस बाय द लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बराबर। और सबसे पहले हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट कौन सा है? तो कि भाई आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हियर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट एटम्स, यूजुअली बिटवीन व्हाट? मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने बता दिया ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने वाला है? 7 के पास। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने वाला है? 6 के पास। और 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाने वाले हैं? 5 के पास। ये जो 3 वाला जो पार्ट है, ये 3 ग्रुप वाला जो पार्ट है, दिस 3, वो क्या है? वो मेटल है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो 3 है पीछे वाले 5, 6, 7, वो क्या है? नॉन मेटल है। बराबर। तो 1 इसका जो बॉन्डिंग है, ग्रुप 1 का बॉन्डिंग है, वो ग्रुप 1 का बॉन्डिंग किसके साथ जाने वाला है? 7 के साथ। ग्रुप 2 का बॉन्डिंग किसके साथ जाने वाला है? 6 के साथ। और ग्रुप 3 का बॉन्डिंग किसके साथ जाने वाला है? 5 के साथ। तो अगर ऐसा नहीं है कि इट कैन गो विद एनी वन, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। इट कैन गो विद एनी वन। अगर हम यहाँ पर ग्रुप 1 लेते हैं और मुझे ग्रुप 6 चाहिए तो फिर भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ 2 एटम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से। जैसे कि MgCl2, बराबर MgCl2। Mg की वैलेंसी कितनी है? 2+, और Cl की कितनी है? -। लेकिन कितने Cl चाहिए आपको? 2। तो यहाँ पे 2- हो गया। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा कैसे बता देगा? ये और ये न्यूट्रलाइज हो गया। बराबर। मैं बताऊँगा। यहाँ पे 2- हो जाएगा। एक्चुअली क्लोरीन की
1 वैलेंसी है, बराबर। लेकिन 2 क्लोरीन चाहिए Mg को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि Mg एक यहाँ पे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, तो Cl माइनस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, माइनस हो गया, दो आउटर मोस्ट शेल के अंदर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए 2 Cl को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन ये ईजीएस्ट वाला है। इतना याद रखना है कि भाई ग्रुप 1 ग्रुप 7 में आराम से जा सकेगा, ग्रुप 2 ग्रुप 6 में आराम से जा सकेगा, ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 5 में आराम से जा सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ बॉन्डिंग बिटवीन व्हाट मेटल एंड नॉन मेटल्स। और ये जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं आयोनिक, उसे क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। Understood? What is the name called? Ionic bond. So ionic bond is formed by transfer of electrons, and it is between metal and non-metal. तो यहाँ पर क्या होगा, इस मेटल ने, ये जो ग्रुप 1 2 3 है, मेटल वाला पार्ट है, उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? डोनेट कर दिया। और इन लोग ने 5 6 7 ने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया? गेन कर दिया। So that is what it is. So what is happening? Gaining of donating of electron and gaining of electrons. So you have to keep this one in mind. Ionic bonds are formed. उसका जो फॉर्मेशन जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? तो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करता है। Ionic bond is a type of chemical bonding that involves electrostatic attraction between the positive charge, oppositely charged ions, that is between positive and negative ions. तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने में थोड़ा तकलीफ लगता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म बाय द आयोनिक बॉन्ड, अगर बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से फॉर्म होता है या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, बराबर, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स, बेसिकली द मेटल एंड नॉन मेटल, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय डोनेटिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बहुत ताकतवर, इसको तोड़ने में दिक्कत आती है, जल्दी नहीं टूट सकता, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। समझ में आया? उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बाद में बात करते हैं। So ionic compound is a chemical compound composed of ions held together by electrostatic forces. An ion is an atom or a molecule that has net electric charge. The number of electrons that an atom loses or gains to form electrovalent bond is called electrovalency. ये सब 1 मार्क के डेफिनेशन है, ये 1 मार्क का डेफिनेशन है, ये 1 मार्क का डेफिनेशन है, ये जो मैंने बताया वो भी 1 मार्क का है, बराबर। ये पॉजिटिव नेगेटिव वो भी 1 मार्क का है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो फॉर्मेशन जो है वो 1 मार्क का है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड वो भी 1 मार्क का है। तो ऐसे सब चीज़ें आपको याद रखनी है, बिकॉज दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के बारे में बता रहा है, यहाँ पे बताया हुआ है सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो लिखेंगे कैसे? हमें एग्जाम्पल देखना है सोडियम क्लोराइड का। सो आई एम गोइंग डाउन, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल। सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड, बराबर। तो सबसे पहले ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। सो आयोनिक बॉन्ड जो कंपाउंड बना रहा है उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। उतना भी याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में आएगा कि भाई गिव एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। आयोनिक कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें अगर क्लासिफिकेशन में अगर NaCl आता है तो NaCl कहाँ पे जाएगा? आयोनिक बॉन्ड के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स बना रहा है। तो सबसे पहले हम सोडियम के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम के अंदर हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे लिखना है भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके? 11। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2, 8, 1। स्टेबल है तो लिखो भाई नॉट स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए टू बिकम स्टेबल क्या करना पड़ेगा? टू बिकम स्टेबल डोनेट
1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कौन सा रहेगा? 2,8 बराबर। तो वो 2,8 वो जो नज़दीक है ना, 2,8 बराबर किसके नज़दीक है? नज़दीक है, लेकिन किसके नज़दीक है? वो नियॉन के नज़दीक है, वो स्टेबिलिटी है। इनर्ट गैस के नज़दीक आ गया, बराबर। यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे टोटल नंबर मैं भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2,8,7 स्टेबल है, नॉट स्टेबल, बराबर। यहाँ पे टू बिकम स्टेबल, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। कहाँ पे जाके बैठेगा? वैलेंस शेल में, बराबर। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 2,8,8 बराबर। किसके नज़दीक हुआ ये? किसके नज़दीक हुआ? आर्गॉन के नज़दीक। स्टेबल है, हाँ अभी स्टेबल हो गया। इनर्ट गैस। अभी आप देखो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, बराबर। आई वांट टू चेंज द कलर, ओके। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन 1 बढ़ जाएगा, इसलिए सोडियम विल बिकम पॉजिटिव आयन N+। और इस बाजू आप क्लोरीन में देख रहे हो, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17। तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 17। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए वो बन जाता है नेगेटिव आयन, इसलिए वो बन जाएगा Cl-। नाउ बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन, and as a result what is it going to form? It is going to form NaCl. I hope you understood, बराबर। दूसरा एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो आपको करना है MgCl2 का। और दूसरा एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आप MgCl2 का भी इस तरह से ही करोगे। एग्जाम में अगर पूछा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन, तो आप इसी तरह से करना है। MgCl2 का भी इसी तरह, पहले Mg में लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, स्टेबल है नहीं स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? वो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा उसका, बराबर। वो सब लिखने के बाद आप क्लोरीन के बारे में ये का सेम लिखना पड़ेगा, बट ये यहाँ 1 क्लोरीन के बारे में हमें 2 क्लोरीन चाहिए ना, क्योंकि MgCl2 के लिए हमें MgCl2 के लिए Mg का जो वैलेंसी वो +2 है, 2+ है। सेम थिंग विद द कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2+। ऑक्सीजन की कितनी है? 2-। समझ में आया? तो हम इसको भी इस तरह से हम कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? आयनिक कंपाउंड, एंड दिस इज द वे टू राइट। बट यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, आप इक्वेशन यहाँ से लिख लेना। यहाँ पे चेक आउट हियर, दिस इज द इक्वेशन दैट यू रिक्वायर टू राइट। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, सोडियम प्लस हो गया, यहाँ पे क्लोरीन माइनस हो गया। यहाँ पे सोडियम कैश आयन बन गया पॉजिटिव, और क्लोराइड एन आयन बन गया नेगेटिव, बराबर। और उसकी जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो गई। देखो आप
बराबर। तो ये इक्वेशन लास्ट में इक्वेशन ये लिखना है। लाइकवाइज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी इस तरह से करोगे आप, और साथ साथ में हम जो कैल्शियम ऑक्साइड का मैं बता रहा था उसके लिए भी आप इस तरह से ही करोगे, बराबर। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है उसमें भी आप ये इक्वेशन लिखना है आपको, समझ में आया। दिस इक्वेशन यू हैव टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में भी इस तरह से पहले कैल्शियम के बारे में बात करो, ऑक्सीजन के बारे में बात करो, फिर दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड हो रहा है, और इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन में डॉट्स अच्छी तरह से लिखना, प्लस टू माइनस वो सब लिखना, वरना आपके 1 मार्क्स कट हो सकते हैं। सो हियर वी आर स्टॉपिंग, वी इन द नेक्स्ट एपिसोड विल स्टार्ट विद द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बराबर। एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैं ये जो वाला पार्ट है वो बाद में आपको समझा दूंगा। सो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड द आयोनिक कंपाउंड, बराबर। और 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। Thanks very much guys, I hope you enjoyed this video. If you have any questions or any doubts, please let me know. We'll see in the miscellaneous videos. I'll see you in the next episode. Thank you very much once again.